Do you know that every single minute 4 people experience heart attack in India? Young people are dying of heart attacks. Think heart attack. Heart attack cases. Sudden heart attacks. Heart attack. Almost 27% of all deaths in India are due to cardiovascular diseases, in which heart attack or myocardial infarction is a major contributor, and it is more prevalent within the age group of 30 to 70. One of the most essential muscle, the heart, that pumps blood throughout the body. The heart helps in supplying oxygen-rich blood to the body. The coronary artery delivers oxygen-rich blood to the heart muscles itself. This constant supply is vital for the heart to keep pumping. Let's look inside a healthy coronary artery where blood flows smoothly. Over time, the accumulation of fats and cholesterols known as plaque forms on the artery walls. This process is called as atherosclerosis, which blocks the oxygen supply to the heart muscles, causing myocardial infarction or heart attack. But why? This harmful condition is triggered by major risk factors like alcohol, smoking, high blood pressure, diabetes, high fat and cholesterol containing junk foods, obesity, and family history of heart diseases. For more information related to this, we visited our University Healthcare Center and consulted the Chief Medical Officer Dr. Abhishek Kumar Jain. Let's hear from the doctor himself. जनरली मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को जो आम जनता जानती है वो हार्ट अटैक के रूप में जानती है। हार्ट अटैक का मतलब है कि अपने हृदय पर हमला हुआ है। ये हमला किसी भी तरीके से हो सकता है। इसमें प्रमुख जो कारण होता है कि शरीर के अंदर घूमने वाले रक्त का थक्का जम जाना, जो कि हार्ट की किसी भी बहने वाली रक्त वाहिकाओं में जमा हो जाता है, जिससे कि उस स्थान पर हार्ट का जो प्लेस है ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने से वहाँ पे इस्चीमिया यानी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो सेल वहाँ पे जीवित रह नहीं पाती है। Let's have a look at the symptoms of heart attack. The common heart attack symptoms includes severe pain in the center of the chest, breathing difficulties, fatigue, nausea and vomiting, heartburn and stomach discomfort, anxiety and faintness. चुकुड़ता दर्द जिसको होता है, जिसको डॉक्टर्स जनरल यूज़ करते हैं कि वो स्क्वीजिंग टाइप का है या टाइटनेस ऑफ हार्ट, वहाँ पर टाइट लगता है चेस्ट के उस एरिया में। इसके अलावा चेस्ट पेन के अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, गिडीनेस, हल्का सा सर दर्द होना और बाएं कंधे में दर्द होना, बाएं जबड़े में दर्द होना और बाएं गर्दन में, ये सारे लक्षण सभी में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये प्रमुखता लक्षण है। महिलाओं में कई बार ऐसा होता है चेस्ट पेन नहीं होता और बाकी के सिम्टम मिलते हैं और एक ठंडा पसीना जिसे हम कोल्ड स्वेट कहते हैं वो भी आता है। महिलाओं में एक इंडाइजेशन की फीलिंग आती है कि अपच हो रही है, इसलिए, जबकि हो सकता है वो अपच ना हो, हार्ट अटैक के कारण ही पेट में दर्द हो रहा हो, पेट के ऊपरी भाग में दर्द हो रहा हो। तो ये मुख्य सिम्टम है। सीने में दर्द होना, बाईं तरफ की गर्दन और शोल्डर यानी कंधे में दर्द होना, हल्का ठंडा पसीना आना, चक्कर आना, फैंट हो जाना, घबराहट होना और थोड़ा सा सर दर्द। A classical example of symptom of heart attack can be seen in a portrait by Dr. Frank Nitter, who is a medical illustrator. This is not merely just a portrait, but shows fine details of the symptoms of heart attack. The picture shows an old man coming out of a restaurant in a cold weather, which denotes that most of the cases of heart attack is seen during cold, chilly weather and after taking heavy meals. We can also see that the person is likely obese and old. That shows most symptoms of heart attack are seen in obese and old peoples. But nowadays we can also see many young people are dying of heart attack. ज़्यादातर केसेस अभी हम देख रहे हैं, जैसे हम मीडिया की कवरेज में देखते हैं कि यंग वंस को भी आजकल हार्ट अटैक आ रहे हैं,
उसका सीधा सा एक कारण है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरीके से बदल गया है। हमारा प्रोसेस फूड जो इसमें मेन एक रीज़न है, जिसमें काफ़ी मात्रा में अनवांटेड लिपिड होता है जिसे हम लोग LDL कहते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग हैबिट, शराब, ये सारी चीज़ें भी कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, आरामदायक लाइफ स्टाइल, अत्यधिक नमक का सेवन, ये जो अभी नए केसेस हम देख रहे हैं कम उम्र में, इसके प्रमुख कारण ये हैं। What are the immediate actions that we can take to save someone's life? सबसे पहले तो हम ये जानें कि हार्ट अटैक के सिम्टम क्या है। सिम्टम जानने के पश्चात हमें तुरंत ही उस व्यक्ति को एक शांत जगह पे ले जाना चाहिए या रखना चाहिए। हमें किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उस व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र एम्बुलेंस या अन्य किसी के वाहन के माध्यम से किसी भी चिकित्सालय में जो नज़दीक है वहाँ तुरंत ले जाएं, हार्ट अटैक की पहचान करें और शीघ्र ही इलाज उसका आरंभ करवाएं। एक आम व्यक्ति के लिए हार्ट अटैक के लक्षण को पहचानना और जो पीड़ित व्यक्ति है उसको सही समय, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं हम लोग, सही समय पर अस्पताल या चिकित्सालय पहुंचाना जहां पे ये सुविधा हो हार्ट अटैक के इलाज की, ये इन दो कारणों से हार्ट अटैक के कारण जो डेथ है वो काफ़ी कम की जा सकती है। But how do we know if our heart is healthy or not? देखिए, हमें समय समय पर कुछ एक टेस्ट ऐसे रहते हैं कि जो करवाना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप है, 45 या 50 के बाद साल में कम से कम एक बार ECG जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है वो हमारा कराना चाहिए। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, शुगर के लिए HbA1c की जांच और RFT रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सामान्य जांचें हैं जो एक ऐसे व्यक्ति की जिसको पहले से मधुमेह या डायबिटीज़ है, थायराइड की डिजीज़ है, ऐसे व्यक्तियों को साल में कम से कम एक बार ये टेस्ट कराना चाहिए। और जनरली इन टेस्ट को, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, हम स्क्रीनिंग कहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पहले से हार्ट अटैक आ चुका हो, जिसकी अवस्था ज़्यादा हो, उम्र ज़्यादा हो, उसके लिए कुछ कार्डियक बायोमार्कर टेस्ट रहते हैं, जैसे ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I। ये बायोमार्कर डॉक्टर की सलाह पर टेस्ट होते हैं जिससे कि हम हार्ट अटैक को आसानी से पहचान सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। There is a proverb that goes, prevention is better than cure. To prevent heart attack, we have to adapt a heart health lifestyle which includes taking balanced diet with low sugar, low salt and less fatty foods, getting enough physical activity like running, yoga, avoiding alcohol, tobacco, smoking, managing stress and regular heart and body checkup. The sole purpose of this video is to raise awareness to prevent heart attack.